Good morning, friends. Now, next revision lecture. It means it's a revision lecture number 5. In last revision lecture number 4, we just saw so many one-liner questions, friends. Now, we are move on a next one-liner question. But before that, we have to understand some applications, some rules. Okay. First of all, as we know, sigma x is equals to nx bar. Sigma x is equals to nx bar. Then sigma 1, we are just trying to understand some concept. Sigma 1, here I is equals to 1 to n. इसका मतलब क्या है, यहाँ जो दिया है वो क्या है, इट्स अ एन. अब इसका मतलब क्या होगा, सिग्मा 1 मीन्स व्हाट, सिग्मा मीन्स सम ऑफ व्हाट 1, बट हाउ मेनी टाइम, for the n time, it means 1 plus 1 plus 1 plus up to 1 n time. Suppose if I said you that just do addition of 1 5 times, add 1 5 times, then answer will be 5. If we add 1 10 times, then answer is 10. Actually we are not adding, we are just doing multiplication. When I told you that just do addition of 1 5 times, you just multiply 1 with 5. When I told you just add 1 10 times, you are not doing addition, you are doing multiplication. 1 multiply with 10. Same here, 1 is how many times? It's a n time. If 1 is 5 time, then it's a 5. If 1 is 10 time, then it's a 10. So if 1 is n time, then it's a n. Okay, then sigma 2, where I is equals to 1 to n. Okay, sigma means what? Sum of what? 2. But how many times? It's a n time. So it's a 2 plus 2 plus 2 plus up to infinity 2. So 2 is how many times? Again, suppose I said 2 is 5 times. Then what? It's a 10. 2 is 10 times, then it's a 20. So 2 is n times, so it's a 2n. If 2 is n times, then it's a 2n. Suppose there is sigma x bar, where I is equals to 1 to n. Okay, again sigma means what? It's a sum. But sum of what? X bar. And how many times? It's a n time. So it's a x bar plus x bar plus x bar plus up to x bar is equals to, okay, if x bar is 5 times, then it's a 5x bar. If x bar is 10 times, then it's a 10x bar. So if x bar is n times, so it's a nx bar. तो सबसे पहले तो आपको ये कंसेप्ट पता होने चाहिए, इतने कंसेप्ट पता होने चाहिए, तभी आप इसके आगे वाले क्वेश्चंस कर पाओगे. उसके बाद ये क्वेश्चन आपको सभी इजी लगने वाले हैं फ्रेंड्स. फर्स्ट, सिग्मा एक्स इज व्हाट? इट्स अ एन एक्स बार. सिग्मा 1 इज व्हाट? इट्स अ एन. सिग्मा 2 इज 2n. सिग्मा 3 इज 3n. सिग्मा एक्स बार इज व्हाट? इट्स अ एन एक्स बार. Let's do next question. It's a 28th question. 28th question. Actually question में क्या है? Sigma xi minus x bar is equals to blank. Okay. Now sigma and bracket have relation of what? It's a multiplication. Then we will do multiplication.
sigma multiply with x bar, sigma multiply with xi, so it will be sigma xi. Sigma multiply with x bar, then it's a sigma x bar. Here n is not given, so it's a n. What it? Here is n. Okay, now we have the value of sigma xi. What is the value of sigma xi? Sigma xi or sigma x both are same, friends. So it's a n x bar. Same here, sigma x bar is that. Difference is here n is given, here n is not given. Here is no value is given, it means it's a n. So sigma x bar is what? It's a n x bar. So nx bar is plus, nx bar is minus, so its answer is 0. So in a first question, in a 28th question, answer will be 0. Okay, इसको friends आपको right now it's in a mathematical form. इसको किसी स्टेटमेंट के फॉर्म में भी दिया जा सकता है. दैट इज व्हाट? इट्स अ सम ऑफ, उसको अगर स्टेटमेंट में लिखेंगे तो ऐसा भी दिया जा सकता है, और इट्स अ सम ऑफ डेविएशन बाय मीन. ओके, सम, सिग्मा मीन्स व्हाट? सम. और जिसको आप xi माइनस एक्स बार देख रहे हो, इट्स अ डेविएशन, एंड यहां x बार दिया है, उसका मतलब क्या है? इट्स अ मीन. देन सम ऑफ डेविएशन बाय मीन, तो उसका आंसर भी क्या होगा? इट्स अ 0. एक्चुअली बोथ आर सेम, इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल फॉर्म और इट्स इन अ स्टेटमेंट फॉर्म. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट 29 क्वेश्चन. अब काफी बच्चे यहां मिस्टेक करते हैं. ये दोनों क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये जो ब्रैकेट है उसका ही डिफरेंस है. यहां ब्रैकेट दिया हुआ है और यहां ब्रैकेट नहीं दिया है, तो काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों तो सेम ही है, तो वो 28 में जो आंसर है 0 वही यहां लिख लेते हैं. इट्स अ 0, बट इट्स अ रॉन्ग. अब एक्चुअल में हमें क्या करना है? ये जो 10 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? इट्स अ जस्ट n, उसके अलावा उसकी कोई वैल्यू नहीं है. एक्चुअल में हमें क्या करना है? इट्स अ सिग्मा xi माइनस x बार फाइंड करना है. ओके, सिग्मा xi की वैल्यू क्या है? इट्स अ n x बार माइनस x बार एज इट इज. Now n is what? It's a 10. So it's a 10 x bar minus x bar. So your answer is what? It's a 9 x bar. So answer of 29 question will be what? It's a 9 x bar. अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ सपोज 10 है तो आंसर हमें क्या मिला? It's a 9 x bar. अगर वहाँ 5 है तो हमें आंसर क्या मिलेगा? It's a 4 x bar. वो कैसे आ रहा है वो भी हमने यहां देखा फ्रेंड्स. नाउ 30th क्वेश्चन. इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 10 है वो क्या है? इट्स अ n. जो 10 दिया है वो क्या है? इट्स अ n. ओके, सो सिग्मा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 5. First of all, again sigma multiply with x, then it becomes sigma x. Sigma multiply with minus 2, so it's a sigma 2 is equals to what? 5. Again we have the value of sigma x. Sigma x is what? It's a n x bar. Sigma 2 means what? It's a 2n is equals to 5. Now we have the value of n. N is what? It's a 10. So it's a 10 x bar minus 2 into 10, that is 20. So now 10 x bar equals to 25, and therefore x bar equals to what? It's a 2.5. It's a 2.5. So x bar is 2.5 friends. सेम क्वेश्चन है.
31. Okay, again here 20 is what? It's a n. Now sigma multiply with 2xi. तो उसको सिग्मा 2xi ऐसा नहीं बोलना है, उसको 2 sigma xi कहेंगे. तो देन इट्स प्रोडक्ट इज 2 sigma xi प्लस सिग्मा 1 मीन्स इट्स अ सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? इट्स अ 50. ओके, नाउ 2 इंटू सेम चीज है, सिग्मा एक्स इज व्हाट? इट्स अ एन एक्स बार प्लस सिग्मा 1 is what? It's a n is equals to 50. Again we have n is what? It's a 20. So 2 into 20 into x bar plus 20 is equals to 50. So it's a 40x bar is equals to 30. Why? 20 is plus, it will be minus. Then x bar is equals to what? It's a 3 by 4. Either it's a 0.75. So it's your 31st answer. Okay. यहाँ एक क्वेश्चन में n नहीं दिया है. n आपको यहाँ 10 सपोज करना है. x बार इज इक्वल्स टू 7 है, y बार इज इक्वल्स टू 5 है एंड n इज इक्वल्स टू 10 है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स. ओके, सिग्मा एंड ब्रैकेट हैव रिलेशन ऑफ व्हाट? मल्टीप्लिकेशन. जस्ट डू मल्टीप्लाई. सिग्मा मल्टीप्लाई विथ xi, so it's a sigma xi. Sigma multiply with yi, so it's a sigma yi. Sigma multiply with x bar, so it's a sigma x bar. सिग्मा और ब्रैकेट यहां तक ही है, 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है. सो 3 विल बी एज इट इज. ओके, अगेन सिग्मा xi इज व्हाट? इट्स अ n x बार. सिग्मा yi इज व्हाट? इट्स अ n y बार. सिग्मा x बार इज ऑल्सो व्हाट? इट्स अ n x बार प्लस 3. और जैसे मैंने बताया ऐसे यहाँ n क्या लेना है? 10. तो यहाँ क्या हो जाएगा? इट्स अ 10 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 7 प्लस 3. सो इट्स अ 70 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 3. Then it will be 7 plus 50, 120 plus 190 plus 3. That is 193. So it's the answer of 23rd question. तो ये पांचों क्वेश्चन हमने कैसे किए फ्रेंड्स? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सिग्मा. ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए. इट्स वेरी सिंपल, नथिंग टू वरी. ऐसे क्वेश्चन हम आगे भी कर चुके हैं फ्रेंड्स. जस्ट डिफरेंस इज व्हाट? ये जो क्वेश्चन दिया है इट्स इन अ मैथमेटिकल फॉर्म. आगे भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए, लेकिन इट्स व्हाट? इट वाज इन अ स्टेटमेंट फॉर्म. आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था कि मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशन आर 84. मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशंस आर 84. इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 3 एंड डिवाइड बाय 5 देन फाइंड न्यू मीन. अब उस क्वेश्चन में मैंने क्या रूल्स बताया था आपको कि जो प्रोसेस आपको ऑब्जर्वेशन में करने को कहा है, आपको वो प्रोसेस कहाँ करनी है? इन अ ओल्ड मीन. ये क्वेश्चन यही है फ्रेंड्स. चलो मान लीजिए कि आप किसी 5 ऑब्जर्वेशन को इमेजिन कीजिए. किसी भी 5 ऑब्जर्वेशन को आप इमेजिन कीजिए. ओके, सपोज दे ऑल आर xi. उन सभी को हम xi कहते हैं. अब मान लीजिए कि मैं आपको ऐसा कहूँ कि एड 3 इन ईच ऑब्जर्वेशन. अब जो आपने 5 ऑब्जर्वेशंस सपोज किए हैं उन सभी में अगर आप 3 ऐड कर रहे हो तो आपको जो ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे वो वही होंगे या डिफरेंट होंगे, या आपको न्यू ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे? इट्स वेरी सिंपल, दे ऑल आर न्यू ऑब्जर्वेशंस राइट नाउ. अब ओल्ड ऑब्जर्वेशन को हमने कैसे डिनोट किया था? बाय xi. तो अभी वो जो नए ऑब्जर्वेशन मिलेंगे दे विल बी yi. सेम चीज यही है.
यहां जो हमें xi दिया है दैट इज व्हाट ओल्ड ऑब्जर्वेशन. इट्स मल्टीप्लाई विथ 2. It's multiply with 2. It means what? Each observation multiply with 2. Then divide by 3 and subtract 1. Then you will get new observation y. अब इसका मतलब समझ रहे हो, यहाँ हमें old observation में कौन सी प्रोसेस करनी ये दी गई है. फर्स्ट अगेन आई रिपीट, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 टू ईच ऑब्जर्वेशन, देन डिवाइड बाय 3 टू ईच ऑब्जर्वेशन एंड सब्ट्रैक्ट 1. तो हमारा रूल्स क्या है, वही प्रोसेस हमें किस में करनी है, इन ओल्ड मीन. नाउ ओल्ड ऑब्जर्वेशन आर व्हाट xi, सो इट्स ओल्ड मीन इज व्हाट, इट्स x बार. तो हमें इस पे ये प्रोसेस करनी है. 45 मल्टीप्लाई विथ 2 इट्स 90, डिवाइड बाय 3 इट्स 90 डिवाइड बाय 3 इट विल बी 30, 30 माइनस 1 इट्स 29. सो 33 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ 29. तो कैसे सॉल्व करना है आपको अभी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स. ओके, नाउ इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए. इट्स वेरी इजी. फाइंड द मीन ऑफ फैक्टर ऑफ 12. तो यहाँ दोनों चीज यहाँ चेक की गई है. आपको मीन पता है या नहीं, और आपको फैक्टर वर्ड पता है कि नहीं. अब ये क्वेश्चन आप कब सॉल्व कर पाओगे, जब आपको फैक्टर वर्ड पता होगा तभी. विच आर दी फैक्टर्स ऑफ 12? फैक्टर ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 4, 6 and 12. They are the factors of 12. Why? 12 can be divided by this. Okay, अब इसका हमें मीन फाइंड करना है. It's very simple. Right now they are what? Observations. So sum of all the observations and divide by number of observations. 6 plus 4 it's a 10. 10 plus 12 22. 22 plus 3 25. 25 plus 2 27 plus 1 28. And number of observations are how many? It's a 6. So it's a 14 by 3. Either 3 4s are 12.67, क्योंकि अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.66 ही मिलेगा हमें. फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ फर्स्ट. यहाँ क्वेश्चन में 5 वर्ड होना चाहिए. फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5. ओके, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5. Now multiple of 5 means what? Table of 5. Table of 5 में जो first 5 numbers मिल रहे हैं they are multiple of 5. It means first 5 numbers which are divisible by exact divisible by 5. First 5 numbers. So यहाँ multiple of 5 they are 5, 10, 15, 20 and 25. So their mean is, फर्स्ट ऑफ ऑल सम कर देंगे. यहाँ क्या हो जाएगा 30, ये 50, 50 प्लस 25 दैट इज 75 एंड डिवाइड बाय 5 सो इट बिकम्स 15. नाउ 36 क्वेश्चन. ओके, अगेन इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स. इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किया था ये वाला 33 वाला, जिसमें हमें मैथमेटिकल फॉर्म में वो दिया गया था, ठीक उसी तरह ये क्वेश्चन भी इन अ मैथमेटिकल फॉर्म ही है. एक्चुअल में देखिए इसका मीनिंग क्या होगा. इट्स अ मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन x1, x2, x3 अप टू xn. अब थोड़ा सा सोचिए, x1 इज व्हाट? ऑब्जर्वेशन, x2 इज ऑब्जर्वेशन, x3 इज ऑब्जर्वेशन एंड xn इज observation. They all are what? Observation. Is m? उन सभी का ऑब्जर्वेशन क्या है? It's a m. Okay. Then mean of x1 minus m. अब x1 minus m का मतलब समझिए. x1 means it's a first observation and minus m means we subtract m from the first observation. x2 minus m का मतलब क्या होगा? We subtract m from the second observation. x3 minus m का मतलब क्या होगा? We subtract m from the third observation.
सेम अप टू xn माइनस m का मतलब क्या होगा? वी सब्ट्रैक्ट n फ्रॉम द लास्ट ऑब्जर्वेशन xn। अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वी सब्ट्रैक्ट m फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन। ऐसा ही हुआ ना, वी सब्ट्रैक्ट m फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन। अब हमें मालूम है रूल्स, जो प्रोसेस हमें ऑब्जर्वेशन में करने को कहा गया है वो हमें किस में करनी है? इन ओल्ड मीन। एंड विच इज द ओल्ड मीन? इट्स अ m। तो हमें m किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? m में से। सो m माइनस m, देयरफॉर इट्स आंसर इज 0। पहले दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन है काफी इजी। इट्स योर 36th क्वेश्चन। Okay, now it's very interesting question. X bar minus n, 37th question. X bar minus n is equals to minus 8. Okay, and sigma fi xi is what? 65. Then find n. Okay, we have the value of x bar, that is sigma fi xi by n by direct method. Formula of mean in a direct method is what? It's x bar equals to sigma fi xi by n. उसका मतलब क्या होगा? जहां x बार है वहां क्या पुट डाउन कर सकते हैं? सिग्मा fi xi by n minus n is equals to minus 8. Okay, now we have the value of sigma fi xi, that is 65 by n minus n is equals to minus 8. So 65 minus n into n, it will be n square and minus 8. अब ये दोनों को कहाँ भेज देंगे? सामने। सो हमें क्या मिलेगा? ये वाला स्टेप मिलेगा। नाउ इट्स व्हाट? इट्स अ फैक्टराइजेशन। हमें 65 के ऐसे दो पार्ट्स लेने हैं जिसका प्रोडक्ट क्या होगा? 65 और जिसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा? इट्स अ 8। यहां मैं डायरेक्ट वो फैक्टर्स लिख रहा हूं, n माइनस 13 और n प्लस 5। अब 0 कहां दे देंगे? इट्स अ n माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 और इट्स अ n प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो n इज इक्वल्स टू 13 और n is equals to minus 5. But as we know, minus 5 is not possible. So your answer is what, friends? It's a 13. Okay. Okay, friends. Now next question. Okay, it's very interesting question. अब यहाँ हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, फ्रेंड्स। अब ये सभी क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन दे आर फ्रॉम कॉम्पिटिटिव कॉर्नर भी हो सकते हैं। द सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 80। द सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 80। अब थोड़ा सा सोचिए, इट्स नॉट अ मीन, इट्स अ सम। सबसे पहले तो ये सोचिए, इट्स नॉट अ मीन, इट्स अ सम। सम ऑफ व्हाट? 10 ऑब्जर्वेशन। Sum of 10 observation is 80. Okay, right now we don't know which are the 10 observation, which are that 10 observation. Okay, तो यहाँ मैं थोड़ा सा ऐसा लिख रहा हूँ, it's suppose x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 और x10। एक्चुअल में आपको ऐसा लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझ में आए इसलिए मैं लिख रहा हूं। ऐसा सपोज कीजिए कि दे आर ऑब्जर्वेशंस। नाउ सम ऑफ दैट ऑल 10 ऑब्जर्वेशन आर व्हाट? इट्स 80 व्हिच इज गिवन। अब सोचिए, इफ हाफ ऑफ डेटा आर एडेड बाय 2, हाफ ऑफ डेटा मीन्स व्हाट? इन अ 5 ऑब्जर्वेशन। Suppose we add 2 in a first 5 each observation. Okay, यहां भी 2 ऐड किया, इसमें यहां भी 2 ऐड किया, सभी में 2 ऐड कर दिया and 1 is subtracted from the rest. Okay, बाकी जितने बचे उनमें से हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो अब बताइए इसका ये जो सम है उस पे क्या इफेक्ट होगा? सोचिए इन सभी में। ओके,
ये अभी इसको आपको नहीं देखना है, यहां से यहां तक जितने ऑब्जर्वेशन है उसका सम क्या है 80। अब यहां 2 ऐड किया, यहां 2 ऐड किया, यहां 2 ऐड किया, सभी में 2 ऐड किया, तो इट मींस उसका सम एक्चुअली 10 जितना इंक्रीज हो जाएगा, इट विल बी वी विल ऐड 10 इन 80, सो इट विल बी 90। लेकिन यहां हमने 5 टाइम 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो उसका मतलब क्या है, उसका सम डिक्रीज बाय 5 हो जाएगा। सो एक्चुअली 80 प्लस 10 दैट इज 90 एंड माइनस 5 दैट इज 85 हो जाएगा। सो करेक्टेड सिग्मा xi क्या हो जाएगा, इट्स 85। सो करेक्टेड मीन क्या हो जाएगा, इट मीन्स x बार, इट्स 8.5, क्या हो जाएगा 8.5। हाउ, 85 डिवाइड बाय 10, इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, 3b इज प्लस, 3b इज माइनस, 2b इज माइनस, 2b इज प्लस, b इज प्लस, b इज माइनस, वो सभी कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ a वाले टर्म्स ही बचेंगे। a प्लस a, इट्स 2a, प्लस a 3a, 4a, 5a, 6a और 7a. So sum of all the observations are what? It's a 7a. And number of observations are 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 7. So 7a divided by 7, it will be a. So your answer is 39. Again it's very simple. यहाँ ये भी देखा गया है, आपको मीन पता है या नहीं, उसके साथ में आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऐसा भी पता है कि नहीं, ये देखा गया है। ओके, विच आर दी ऑब्जर्वेशंस, पहले वो देख लेते हैं। एक्स विल बी रिमेन सेम। ओके, अंडर रूट 4x स्क्वायर दिया गया है, उसका मतलब क्या है, उसका स्क्वायर रूट, व्हाट इज द स्क्वायर रूट, इट्स 2x। ओके, क्यूब रूट में 27x क्यूब दिया गया है, सो उसका क्यूब रूट क्या होगा, इट्स 3x। ओके, व्हाट इज द फोर्थ रूट ऑफ 256x raised to 4 is, it's 4x। why, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256। ओके, सो दिस आर दी ऑब्जर्वेशन। तो अब हमें इसका मीन फाइंड करना है। सो 4 प्लस 3 दैट इज 7 प्लस 2 9 प्लस 1, इट्स 10x डिवाइड बाय 4। व्हाई, बिकॉज how many observation are there, 4, so it will be 2.5x। so your mean is what, it's 2.5x। okay, अगेन सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां परसेंटेज चेक किया गया है कि आपको परसेंटेज फाइंड करना आता है कि नहीं। हाउ कैन वी गेट 10% ऑफ 100, कैसे डिराइव करेंगे, 100 मल्टीप्लाई विथ 10 एंड डिवाइड बाय 100, so 100 will be cancel। so again first observation will be 10। now 18% of 50, how can we get 18% of 50, it's 50 multiply with 18 by 100, so 50 2 जा and 18 by 2 that is 9। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, it's 9। 20% of 40, 20% of 40 कैसे करेंगे, 40 multiply with 20 divide by 100, so 20 will be cancelled, so it will be 8। and 30% of 30, again how can we get the 30% of 30, 30 multiply with 30 by 100, so 20 will be cancelled, so it's again 9। so these are the observations and we have to find its mean। so again x bar equals to 10 plus 9 19, 19 plus 8 27, 27 plus 9 that is 36, so 36 by 6 that is, sorry, 36 by 4, so it's 9, 4 9s are, okay। now next question, it's very interesting।
a plus b is equals to 7, b plus c is equals to 8, c plus a is equals to 9, then find the mean of a b c. ओके, अब सोचिए हमें एक्चुअल में क्या फाइंड करना है, मीन ऑफ ए बी सी. सो फर्स्ट थिंग दैट इज क्लियर, आइदर वी हैव टू इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. ओके, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ मीन ऑफ ए बी सी? इट विल बी ए प्लस बी प्लस सी बाई 3. For that we required either individual value of a, b and c. As I said, either we can, suppose we have the value of a plus b plus c, whole value of a plus b plus c, then we can find mean. Okay, which are the results are given? A plus b is equals to 7 is the first equation, b plus c is equals to 8 is the second equation, and c plus a is equals to 9 is the third equation. Okay, now what we will do? We will take addition of all three equations. And how can we do addition? LHS to LHS and RHS to RHS. So यहाँ क्या हो जाएगा? A plus A, it will be 2A. B plus B, it will be 2B. C plus C, it will be 2C. 8 plus 7, 15 plus 9, that is 24. Now 2 is common, so it will be a plus b plus c is equals to 24. So it will be a plus b plus c is equals to what? 12. But we have to find the mean of a, b, c. We have to find the mean. So just put down the formula. It's a x bar equals to a plus b plus c by 3, and we have the value of a plus b plus c. It's a 12. So 12 divided by 3, that is 4. So it's your answer. By this method you can find the mean. Find the mean of first 5 composite natural numbers. Okay, यहाँ भी दो कंसेप्ट चेक किए गए. फर्स्ट, आपको मीन पता है कि नहीं वो तो चेक करना ही है, लेकिन आपको कंपोजिट नेचुरल नंबर्स पता है कि नहीं वो भी यहाँ चेक करना है फ्रेंड्स. ओके, विच आर दी फर्स्ट 5 कंपोजिट नेचुरल नंबर्स? इट्स अ 2. सबसे पहले यहाँ देखना है 2. काफी बच्चे यहाँ 1 ले लेते हैं. इट्स अ रॉन्ग. 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ कंपोजिट नंबर. सॉरी, कंपोजिट कहाँ गया है? सो फर्स्ट नंबर विल बी 4. 4 is the first composite number. 2 is a prime number. Then 6, then 8, then 9, then 10. These are the first 5 composite natural numbers. अब इसका हमें mean find करना है. So how can we find sum of all the observations? 6 plus 4, 10. 10 plus 10, 20. 29, 37. So 37 divided by 5. अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कैसे करना है मालूम है? We will not do division, we will do multiplication by 2. तो यहाँ क्या हो जाएगा? 74 divide by 10, so it will be 7.4. Find the mean of first 5 perfect square number. Again mean भी देखना है और perfect square numbers भी पता होने चाहिए. Which are the first 5 perfect square number? That is 1. What is the meaning of perfect square? जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट नंबर में, इट्स नॉट इन अ फ्रैक्शन. इट्स अ 1, इट्स अ 4, इट्स अ 9, इट्स अ 16 और इट्स अ 25. इसका हमें मीन फाइंड करना है. इट्स अ 9 plus 1, 10. It's a 20, so it's a 30. 30 plus 25, it's a 55. So 55 by 5, that is 11. So its mean is what? It's a 11. Okay, now it's very interesting question. Mean of some observation. यहाँ कौन सा वर्ड यूज किया गया है? Some observation. It means how many observations are there? We don't know. तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम वो assume कर लेते हैं. How many observations? Let's suppose that there are 10 observations.
ऐसा हम सपोज कर रहे हैं, तो उसका मीनिंग क्या होगा? मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10, इट मीन्स मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 10। ऐसे हमने आगे कई सारे क्वेश्चन किए। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 10, then what we can derive it from? We can get sum of all 10 observations. Okay, so sum of 10 observations are how many will be? 100। ये हमने सपोज किया है। अब 100 कैसे हुआ? 10 is a n and 10 is a x bar, so it's a 100। If one observation is cancelled, okay, so now how many observations are there? It's a 9। So and mean remains same, mean remain same, okay, so mean remains unchanged, it means what? Mean remain 10, okay, so now we have 9 observations, so what we will find? Sum of 9 observation. How can we find the sum of 9 observation? N multiply with x bar, so 9 into 10, that is 90. Again repeat. Okay, first of all, how many observations are there? 10, and its sum is 100. Now how many observations are there? 9, and their mean is 90. So cancelled observation is what? So cancelled observation is 10. Cancelled observation is what? It's a 10. Okay, ये भी काफी अच्छा वाला क्वेश्चन है। If the mean of 2x and y is 8, okay, पहले इसका ही कुछ सोचते हैं। अगर हमें 2x और y का मीन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? सम ऑफ ऑल दैट 3 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 3, और मीन दिया है, इट मीन्स 8 इज इक्वल्स टू 2 प्लस x प्लस y बाय 3। So now 3 is in a division, it will be in a multiplication, so it will be 24, or 2 is plus, it will be minus, so we will get the value of x plus y, that is 22 is the first result. Okay, now what we have to find? Actually we have to find the mean of x, y and 8. Okay, how can we find the mean of x, y and 8? Addition of all that 3 observation and divide by 3. Now we have the value of x plus y, that is 22 plus 8 by 3, so it's a 30 by 3, it's a 10. So your answer is 10. Okay, it is also very interesting questions and little bit difficult question, nothing to worry, लेकिन थोड़ा सा तो difficult है। If the mean of x and 1 by x is k, then find the mean of x square and 1 by x square. Here x square and 1 by x square is what? They are observations. अब इसका हमें मीन फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? x square plus 1 by x square. How many observations are there? 2. So it's divide by 2. Again I repeat, अगर हमें इसका मीन फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सम ऑफ बोथ दी ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइड बाय 2। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है। लेकिन हमें ये दिया गया है मीन ऑफ x एंड 1 बाय एक्स। ओके, जैसे हमने किया था यहाँ 2xy का मीन कैसे फाइंड किया होगा? तीनों का सम किया होगा, डिवाइड बाय 3, देन आंसर इज 8। सेम हियर x और 1 बाय एक्स का मीन कैसे फाइंड किया होगा? दोनों का सम किया होगा एंड डिवाइड बाय k किया होगा। सो वी कैन राइट लाइक दिस, इट्स अ k इक्वल्स टू x प्लस 1 बाय एक्स बाय 2। So now 2 is in a division, it will be in a multiplication, so it's a 2k is equals to x plus 1 by x, ऐसा हो जाएगा। अब सोचिए, अब काफी बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि हमें यहाँ स्क्वायर चाहिए, तो हम यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे और यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन दैट इज रॉन्ग, ऐसे हम नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है? बोथ साइड स्क्वायरिंग करना है, ऐसे बोथ साइड स्क्वायरिंग करना है। नाउ 2k होल स्क्वायर इज व्हाट? इट्स अ 4k स्क्वायर। नाउ इट्स एक्सपेंशन बाय
a plus b whole square. So it will be x square, square of first term, 2 multiply with first term, multiply with second term. अब 2 multiply with x multiply with 1 by x करोगे तो x x क्या हो जाएगा, कैंसल, and square of last term. ओके, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x square plus 1 by x करके, तो किसको सामने भेज देंगे, इट्स अ 2. So 2 is plus, it will be minus. So now it's a 4k square minus 2. So it's a x square plus 1 by x square is equals to 2 into 2k square minus 1. It's the value of x square plus 1 by x square. Now that value just put down here. So it will be 2 into 2k square minus 1 by 2. So 2 is cancelled. And that is 2k square minus 1. So that is your answer. Okay friends. Okay friends, 47 वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. आप देख रहे हो सिर्फ मीन में ही कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं. मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. mean of n observations, it means infinite observations, are x bar. ओके, तो इस पे से हम सबसे पहले क्या डिराइव कर सकते हैं, सम ऑफ n ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ n ऑब्जर्वेशन is equals to n x bar. Sum of n observation is what? It's n x bar. Okay, right now we don't know which are the observations. Let's suppose that observations are x1, x2, x3 up to what? It's a xn. इसका मतलब क्या हुआ, ये किसका सम है, इन सभी का. x1 plus x2 plus x3 plus xn is equals to what? n x bar. ये आपको याद रखना है. अब what? If the first observation is increased by 1, अब थोड़ा सा सोचिए, first observation is increased by 1, so that observation will be what? x1 plus 1. Second by 2, second observation is what? x2, it's increased by 2, so it's a x2 plus 2, and so on. It means in a third observation it's increased by 3, fourth observation increased by 4, so nth observation is increased by n. तो यहां क्या हो जाएगा, इट्स x plus 3 up to xn plus n. Okay, now they are the new observations and we have to find their mean. अब हमें इसका मीन फाइंड करना है. सो हाउ कैन वी फाइंड, x bar equals to sum of all the observations, x1 plus 1, x2 plus 2 plus x3 plus 3 plus up to xn plus n. Okay, and divide by n. अब यही से सभी इंपॉर्टेंट चीज है. अब इसका हम सम कैसे करेंगे फ्रेंड्स. अब इसका सम डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं. इसको हम 2 पार्ट्स में लेंगे फ्रेंड्स. फर्स्ट कौन सा पार्ट लेंगे, इट्स x1 plus x2 plus x3 plus up to xn प्लस सेकंड वाला पार्ट कौन सा होगा, 1 2 3 up to n. सो इट्स a 1 plus 2 plus 3 plus up to n, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, इट्स n. नाउ अब इसका मतलब क्या हुआ, x1 plus x2 plus x3 plus up to xn, that is we have that answer, that is n x bar. और फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हमने इसका भी आंसर देखा है. एक्चुअली ये क्या है, इट्स अ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, एंड वी नो द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n into n plus 1 by 2 and whole divide by n. So okay, from the numerator n is common, so it will be x bar plus n plus 1 by 2 n divide by n, so n is cancelled, so it's x bar plus n plus 1 by 2. so that is your answer, x bar plus n plus 1 by 2. ये काफी बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें भी समझने की भी जरूरत थी. ओके, नाउ 49th क्वेश्चन.
It's a 49th question. It's also very interesting. Mean of first n natural number is given. Okay. X bar equals to sigma xi by n. We have the formula. Mean is given. What is the mean? It's a 5n by 9. Sigma xi means what? Sum of first n natural number. Sum of first n natural number is what? n into n plus 1 by 2. तो वो जो 2 है कहाँ चला जाएगा? इन डिनोमिनेटर. So now n is cancelled. Now cross multiplication, 2 into 5n, that is 10n. 9 multiply with n, so it's a 9n plus 1, that is 9. 9 को यहाँ ले लेंगे, then it will be n equals to what friends? 9. ये भी काफी अच्छा वाला क्वेश्चन है, इसको भी समझने की कोशिश कीजिए. इट्स अ 50th क्वेश्चन. An average temperature of Wednesday, Thursday and Friday is 34. Okay, average temperature कहाँ गया? Suppose temperature of Wednesday is x degree, temperature of Thursday is a y Celsius, then temperature of Friday is z Celsius. अब उसका हमें एवरेज फाइंड करना है. देन इट विल बी व्हाट? इट्स x प्लस y प्लस z बाई 3 इक्वल्स टू व्हाट? 34. सो नाउ वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z इज व्हाट? इट विल बी 102. ओके, इज द फर्स्ट इक्वेशन. कैसे कर रहा हूं समझिए. वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या है? x. थर्सडे का टेम्परेचर क्या लिया? y. फ्राइडे का z. नाउ इट्स एवरेज, सो इट विल बी x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 102 है. नाउ व्हाट? इफ एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. ओके, हमने थर्सडे का ऑलरेडी क्या एज्यूम किया है? y, तो वो तो y ही रहेगा. फ्राइडे का टेम्परेचर भी हमने क्या एज्यूम किया है? z, तो वो z ही रहेगा. एंड सैटरडे का टेम्परेचर दिया है, इट्स अ 35. अगेन डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू व्हाट? 32. ओके, इट्स अ नॉट अ सैटरडे, इट्स अ 32. सो नाउ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ y प्लस z. हाउ कैन वी गेट? 3 multiplied with 32, it will be 96. Now 35 is plus, it will be minus, so it will be 61. That is the second equation. Now this value put down in a first equation. It means what? Y plus z can be replaced by 61. Okay, so now what is the value of x? यहाँ क्या हो जाएगा? 41. So टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, हमने वेडनेसडे को ही x सपोज किया था. सो टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे इज व्हाट? 41. तो तीनों क्वेश्चन काफी अच्छे थे फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी काफी अच्छे क्वेश्चनों में से एक है. इट्स अ 51. इट्स अ क्वेश्चन रिलेटेड विथ सिग्मा. फर्स्ट इज सिग्मा इन ब्रैकेट x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या दिया गया है? इट्स अ 120. नाउ सिग्मा मल्टीप्लाई विथ x, सो इट्स अ सिग्मा x. सिग्मा मल्टीप्लाई विथ 3, सो इट्स अ सिग्मा 3. ओके, नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ सिग्मा x, दैट इज nx बार, और सिग्मा 3 इट्स अ 3n. ये सभी हम पढ़ चुके आज के ही लेक्चर में. इट्स अ 3n, इट्स अ 120. It's the first equation. Now sigma in bracket x plus 5 is equals to 160. Okay, sigma multiply with x, it's a sigma x. Sigma multiply with 5, it's a sigma 5 is equals to 160. So again it's a nx bar plus 5n is equals to 160. So it's a second equation. Now we can take subtraction, elimination method. Nx bar plus 3n is equals to 120 and nx bar
plus 5n is equals to 160. Now take a subtraction. So nx bar will be cancelled. Here is minus 2n is equals to minus 40. So n equals to what? It will be 20. So your answer is 20. And what do we have to find? N and x bar. So this value put down in either first equation, either in a second equation. Suppose we put down this value in a first equation, so it will be 20x bar plus 60 is equals to 120. So 20x bar is equals to 60. So x bar is equals to 3. So what is the value of x bar? Is 3. And the last one, but most important question, means not for exam point of view, but it's little bit difficult question. Okay, mean of, अब इसको आपको समझने की कोशिश करनी है. Mean of any frequency distribution is 40 and its class length is 10 and total number of observations are 40. Okay, again I repeat, mean is what? 40 and number of observation n means what? 40. So first of all we can get sum of sigma fi xi is 40 into 40, it's a 1600. ये आपको कैसे सोचना है? By direct method. Suppose first column is what? Class. Second column is what? Frequency. Third column is what? Xi. And fourth column is fi xi. Okay, so sum of sigma fi xi is what? Sum of column fi xi is what? 1600. Okay, it was found that two observations was taken in a class 31 to 40 instead of class 21 to 30. अब थोड़ा सा सोचिए, चलो मान लीजिए कि यहाँ हम कुछ प्रैक्टिकल देख रहे हैं. Class which is first is 21 to 30 and 31 to 40. Then frequency, suppose here is 6, here is 5 and here is 8. Then xi, it's a what happened we are trying to understand. Suppose its xi is what? 25.5 and its xi is 35.5. Now we will make a fi xi. ओके, अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट कर देंगे. यहाँ दोनों का जो भी होगा वो अभी हमें नहीं मालूम है. अब मान लीजिए, अब इसका मतलब समझिए एफ आई एक्स आई का. अब इसका मतलब क्या है? 25.5 वी टेक्स हाउ मेनी टाइम? 5 टाइम. एक्चुअली हम दोनों का क्या करेंगे? प्रोडक्ट. अब जब इनका दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं और यहां जो हमें इसका सम मिलेगा, दैट इज व्हाट? इट्स अ सिग्मा एफ आई एक्स आई. वो हमें क्या मिला होगा? 1600. ओके, अब सोचिए, अब इसका मतलब क्या होगा? 25.5 हाउ मेनी टाइम्स वी टेक इट? इट्स अ 5 टाइम. और 35.5 वी टेक्स 8 टाइम. अब देखिए, अब उसके बाद पता चला कि 2 ऑब्जर्वेशन वाज टेकन इन अ क्लास 31 to 40 इंस्टेड ऑफ 21 to 30. सो 2 ऑब्जर्वेशंस एक्चुअल में यहाँ थे, लेकिन वो हमने लिए किस में? यहाँ. अब सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? इट्स 7. और यहाँ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? इट्स 6. समझ में आ रहा है? 2 ऑब्जर्वेशंस जो ये क्लास में थे वो हमने यहाँ ले लिए. तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ हमें फ्रीक्वेंसी दी गई कितनी है? 5, लेकिन एक्चुअली वहाँ होनी कितनी चाहिए? 7. यहाँ हमें फ्रीक्वेंसी दी कितनी है? 8, लेकिन वहाँ होनी कितनी चाहिए? 6. अब इसका मतलब क्या हुआ? हमें 25.5 एक्चुअली कितने टाइम लेना था? 7 टाइम, लेकिन हमने लिया 5 टाइम्स. इट मीन्स हमने 2 टाइम लेस लिया है. तो अब क्या करेंगे? उसको 25.5 को 2 टाइम्स ऐड कर देंगे. किसमें? इसमें. तो हम क्या फाइंड करेंगे बाद में? करेक्टेड सिग्मा एफ आई एक्स आई. एंड हाउ कैन वी फाइंड इट? इट्स 1600 माइनस, ओके,
25.5 हमें कितने टाइम लेना था? 7 टाइम, लेकिन लिया 5 टाइम, तो हम ऐड करेंगे, इट विल बी 25.5 इंटू 2। सेम हमें 35.5 हाउ मेनी टाइम्स लेना था? 6 टाइम, लेकिन ले लिया 8 टाइम्स। इट मीन्स 35.5 हमने 2 टाइम्स ज्यादा ले लिया, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 35.5 इंटू 2, सो इट विल बी 1600 प्लस ये क्या हो जाएगा? 51, और ये क्या हो जाएगा? इट्स 71, so it will be 1600 minus 20, so it will be 1580. So your corrected mean, it means corrected sigma fi xi by sigma fi, it's a 1580 by क्या हो जाएगा? 40, so 0 0 cancel, 4 3s are 12, so remainder is 3, 4 9s are 36, so remainder is 2, so your answer is 39.5. और एक चीज बता दूं, इसके बाद भी एक टॉपिक हमारा अभी बाकी है जिसमें हमने z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, इट शोज रिलेशन बिटवीन मोड, मीडियन एंड मीन। ऐसे हमने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं और आपको मटेरियल्स में भी दिए गए, तो ऐसे क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं फ्रेंड्स, ओके। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है वो सभी हमने कर लिए फ्रेंड्स। ये लास्ट वाला क्वेश्चन काफी अच्छा था, ओके।